Hello students, I'm sure you'd have done your face test well related to chemistry part. Let us try to see whether the way we thought into the question solving during the examination, is it the right or is it more on the basis of checking up what we just remember. In any examination, we have to take into account all what the teachers have done in your classrooms. So now to the solution. You know very well that there are two parts in the JEE mains. One related to MCQs containing only one answer correct, and the other one is the integer type or the numerical type. So let us try to go in for the solutions part and then check up whether the thought process is correct or not. So over to the first question. In the first question over here, you find here we have got phenyl, phenyl propene, and we are adding it with HCl. The question here comes up, where will the Cl group go? So if we check up this part, tell me what should come to your mind first. In your mind, immediately should come that when HCl is being added to an alkene, it is going to be an electrophilic addition reaction, and this electrophilic addition reaction proceeds via a carbocation mechanism. If it proceeds via carbocation mechanism, the first carbocation to be written or checked up will be this one. The first carbocation will be this one. Now what happens? There is going to be a hydride shift. The hydride shift takes place over here and you get a stable carbocation of this sort. This is the stable carbocation which is going to be formed. Once you get a stable carbocation of this sort, that means the Cl minus which is there is going to attack over here, and therefore the product formed is going to be Cl. Now match your answer over here. Definitely this is not so. Definitely this is not so. Definitely this is not so. Definitely this part of it. So often what happens is, in our hurry, we go for this part. Some of the students will go for this part. You should not go for that. Check it up that whenever a carbocation is formed, a stable carbocation is formed, and always rearrangement will lead to a much more stable carbocation. Okay. Now the first question is over. We go to the next question. In the next question, check up this question properly. Read the question. We always, when so much of data is given, we often tend to do it very fast. Check up here. What is it? Correct order. Of what? Of increasing order. See, we in the examination hall often forget about, or in a hurry, we start talking in terms of decreasing order also. It is increasing order of boiling point. So what should come to the mind immediately? Boiling point depends upon what factor? Molecular force of attraction. So boiling point depends upon molecular force of attraction. Now molecular force of attraction means what should I check up here? I should check up H bonding, van der Waals, and dipole interaction. Check up the question over here. It's an alcohol. Alcohol means hydrogen bonding. Okay. Now if I take up hydrogen bond over here, check up the first one. It is CCCOH. The second one CCCCOH. And the third one I've got is CCCCOH. And the last one is CCCCCOH. Check up over here. All of them are going to lead to what? Hydrogen bonding. What hydrogen bonding? OH. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Is there only going to be hydrogen bonding? No. There is going to be hydrogen bond and van der Waals force of attraction. Both has to be taken into consideration. If I take both hydrogen bonding and van der Waals into consideration, the number of hydrogen bonds formed in all of them is going to be same. Therefore, I take the now help of what? Van der Waals forces. And if it is going to be van der Waals forces, then in that case, van der Waals forces, okay, let me again check up this part. Van der Waals forces is directly proportional to surface area. Van der Waals forces
directly proportional to surface area. Now look at the question and then see which has got maximum surface area. Maximum surface area over here is comes for this one, maximum surface area. Less surface area, much less surface area. As branching takes place, surface area decreases, you know it. Therefore surface area less here, surface area least over here. Increasing order, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, छोटे से लेके बड़े तक जाना चाहिए. इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा, लीस्ट, लिटिल मोर, एंड दिस वन, नेक्स्ट वन, मच मोर, and this one is going to be maximum molecular force of attraction, and more the molecular force of attraction, more the boiling point. So increasing order, if I check it up over here, the increasing order part over here, it is going to be definitely what, students? A, B is there, C is there, and D is there. A less than B, less than C, less than D. इस तरीके से. Not only that, students, this question came in your BPT examination which was held few days back. The same question came over here. If you check up now, which is the right answer over here, students? Obviously, propan 1-all less than butan 2-all less than butan 1-all less than pentan 1-all. Therefore, answer A choice over here. Is that clear? Clear? Now, after this part, let us go to the next question. Let us go to this question. If I check up this question, what is the right point to be checked up here? See here again, students, what are you going to check up over here? HBr reaction. Again, the correct order of increasing order of reactivity. Increasing order of reactivity. Immediately, strike factor. OH group है, OH group है, OH group है. इन सब के अंदर जब OH ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका, HCl और HBr का, या HCl और HI का, यू हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो जब ये सब रिएक्ट करेंगे, पहला वाला, ये वाला जोन सा है CH2OH है, अगर ये बनाता है तो कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन ये बनाएगा. अब दूसरा वाला कौन सा कार्बोकैटायन बनाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन बनाएगा. CH2OH है और NO2 है, तो इसका मतलब दूसरे वाले ने बना दिया ऐसा कार्बोकैटायन. N डबल बॉन्ड O एक्सेट्रा. तीसरे वाले ने क्या किया, तीसरे वाले ने बना दिया CH2 पॉजिटिव Cl, CH2 पॉजिटिव Cl. मैं जस्ट इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं. OH है और यहां पर CH2 पॉजिटिव रहा और यहां पर Cl. इमीडिएटली क्या गलती क्या करते हैं, यहां पर Cl ग्रुप आ गया तो हम इमीडिएटली कहते हैं कि हां भाई ये स्टेबलाइज हो गया. नहीं, ये लोन पेयर, अब ये कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, लोन पेयर को इसके साथ कॉन्जुगेट करा देते हैं और बोलते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है करके. नहीं, याद रखना, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, नॉट माइनस आर, बट दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. और ये पता होना चाहिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. तो क्या पॉइंट हियर, इट इज गोइंग टू बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज द गवर्निंग फैक्टर. अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो वो कार्बोकैटायन बन सकता है. अगर वो कार्बोकैटायन बन सकता है तो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होगा. अब कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देते हैं. इसको मैंने ए कार्बोकैटायन कहा, ए डैश कहा, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने बी डैश कहा, इसको सी कहा और इसको मैंने सी डैश कहा. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए डैश more stable than C dash, more stable than B dash. Clear? अगर ये stability order आ गया A greater than C, A dash greater than C dash greater than B dash, therefore which will be most reactive? A more reactive than C, more reactive than B. मगर reaction क्या पूछ रहा है वो, increasing order में, decreasing order में नहीं पूछ रहा. therefore answer हो जाएगा कौन सा स्टूडेंट्स, B C A. क्यों, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है,
ए डैश सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी होगी इसके लिए ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, जिसकी वजह से आंसर क्या होगा? ये वाला आएगा, सी चॉइस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर इसे है, आप अगर आप इसको अच्छी तरह से रियलाइज करते हैं, ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन जो सा है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू कुमीन प्रिपरेशन। कुमीन से हम फिनॉल बनाते हैं, उसका है। तो इसके अंदर क्या होता है? अगर मेरे पास कुमीन है, मैंने लिख दिया कुमीन, इसको मैंने ये पेरोक्साइड के अंदर कुमीन पेरोक्साइड बना। कुमीन पेरोक्साइड बनने के बाद में CH3OOH बनता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा आराम से प्रॉपर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इसको मैं लिख देता हूं दोबारा ठीक तरह से। अगर मैंने इसको यहां पर CH3 कर दिया, O कर दिया, O कर दिया, H कर दिया, तो यहां पर मैकेनिज्म है, ये लोन पेयर यहां पर बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड जोन सा है यहां पर आता है, जिससे बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस फिनॉल ये बनता है। कैसे? इसका मतलब इस बेंजीन ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके पुश किया, यहां पर पुश करना चाहिए। अब पुशिंग कैपेसिटी को हमारे को देखना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, किस ग्रुप के अंदर ज्यादा पुशिंग कैपेसिटी होगी? क्या फिनाइल के अंदर ज्यादा पुशिंग कैपेसिटी होगी? क्या मिथाइल के अंदर होगी? या इसके अंदर होगी? ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ध्यान से देखते हैं। तो अगर सी, ये मैंने डाला, ये ग्रुप डाला, सी ग्रुप पुश होगा स्टूडेंट्स। कौन सा ग्रुप पुश होगा? ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप पुश करेगा। गड़बड़ कर रहा है यार, हाँ, ये वाला ग्रुप पुश करेगा, ये वाला ग्रुप पुश करेगा स्टूडेंट्स। क्यों? अब देखते हैं इसको। ये लोन पेयर है, लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया, इसने पुश किया, सी लिखा मैंने यहां पर, सी रख के एच करके एच करके एच करेंगे। इसने पुश किया, इसने पुश किया, इसने पुश किया, ये पुश करके यहां पर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा, जिससे आंसर बन जाएगा अब PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक प्रोडक्ट, प्लस फिनॉल मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप आ जाएगा। तो अब देखिएगा कौन सा चॉइस सही चॉइस है स्टूडेंट्स। यहां पर डेफिनेटली ए चॉइस सही चॉइस है। क्लियर? A choice is the correct choice. That means this is the compound which is going to be formed. So answer 29th question का A choice आएगा। Okay? Now next, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एनिलीन से? ये तो आप सबको याद होगा स्टूडेंट्स, इसे सिखाने भी बताने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमें पता है कि अगर हम एनिलीन से इसको बनाना चाहते हैं, एनिलीन से बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? डायएजोटाइजेशन करना पड़ेगा। डायएजोटाइजेशन करने के बाद में हमारे को सैंड में रिएक्शन यूज करना पड़ेगा, या हमारे को यूज करना पड़ेगा गैटरमैन रिएक्शन। इस पूरे चॉइस में से कौन सा इस सीक्वेंस को बताता है स्टूडेंट्स? तो एक और बार लिख लेता हूं मैं इसको। अगर मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन को डायजोटाइज करके मेरे को डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। अगर मैंने इसको डायजोनियम सॉल्ट के साथ बना दिया तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेलोबेंजीन के अंदर, यानी कि CO2X2। अब बताइएगा यहां से यहां के लिए मुझे क्या चाहिए? HNO2। HNO2 के लिए क्या चाहिए मुझे? NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि HNO2, NaNO2 और HCl रिएक्ट करके HNO2 बना दे, तो कौन सा चॉइस परफेक्ट चॉइस है? चॉइस नंबर डी चॉइस परफेक्टली हो जाएगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब ये हुआ दैट क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर आ जाएगा हमारा डी चॉइस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके अंदर। ओके,
क्वेश्चन नंबर इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। लेट अस स्टडी क्लोरीन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब याद रखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास टोल्यूइन है, टोल्यूइन को अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब बताइए कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा? क्या बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा या मीथाइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा? डेफिनेटली मीथाइल ग्रुप के होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो मेरे पास आ जाएगा क्या? CH2Cl। अगर CH2Cl आ गया तो बेंजाइल क्लोराइड बना। अब ये बोल रहा है एक्सेस, ये नोट करो, एक्सेस करके अगर एक्सेस हुआ तो इसका मतलब ये Cl2 एक्सेस के साथ रिएक्ट कर देता हूं, एक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो बनेगा अब ट्राइक्लोरो कंपाउंड। ट्राइक्लोरो कंपाउंड बना। पहले ट्राइक्लोरो कंपाउंड लिख लिया, अब ट्राइक्लोरो कंपाउंड बना। स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ट्राइक्लोरो कंपाउंड बना, इस ट्राइक्लोरो कंपाउंड को मैंने फिर ट्रीट किया किसके साथ? NaOH के साथ किया। NaOH के साथ ट्रीट किया तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? यहां पर बनेगा COH, OH और OH। ये है जेमिनल ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एंड जेमिनल ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कैन अंडरगो इजी डिहाइड्रेशन। इसका मतलब ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, -H2O कौन सा निकलेगा स्टूडेंट्स? ये पोर्शन निकला। बचा क्या? बचा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कौन सा चॉइस है? बेंजोइक एसिड। कौन सा चॉइस टैली कर रहा है? द चॉइस विच इज टैलिंग ओवर हियर इज D चॉइस। D चॉइस हमारा टैली हो गया इसके साथ। ओके, अब स्टूडेंट्स वी कम टू द न्यू क्वेश्चन नाउ, दैट इज द 32nd क्वेश्चन। इस 32nd क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इतने सारे इंफॉर्मेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स भी हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आराम से करना है। और याद रखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जनरली सब बच्चे लूज करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना मत, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये वाला C9H12O है। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा। अगर आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकलेगा 4। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है तो इसका मतलब बेंजीन टाइप कंपाउंड्स होना जरूरी है। या तो 4 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, और या 3 पाई बॉन्ड और एक साइक्लिक, 3 पाई बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे को दे दिए। इसका मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट सही हुआ। मगर नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज, क्या कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि OH ग्रुप यहां पर और 3 कार्बन एटम यहां पर, या एक और, अगर मैंने फिनॉल रखा और ये 3 कार्बन एटम यहां पर, या फिनॉल रखा, मैंने 1 कार्बन एटम यहां पर, 2 कार्बन एटम यहां पर, इस तरीके के कई सारे आइसोमर्स बन सकते थे, या ये भी हो सकता था। कितने सारे हो सकते हैं? अब ये भी चॉइस हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। हमारे दिमाग के अंदर पहले ये आता है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये फिनोलिक टाइप कंपाउंड है, सारे फिनोलिक टाइप कंपाउंड्स हैं। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। अगर हम ऑब्जर्वेशन के अंदर जाते हैं, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला ऑब्जर्वेशन है, इट डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। जितने भी फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, दे ऑल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर टू गिव ट्राइब्रोमो कंपाउंड्स एक्सेट्रा और डाइब्रोमो कंपाउंड, व्हाटएवर बी द केस, दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ, टू सम एक्सटेंट दिस में क्रिएट अ प्रॉब्लम, दिस वन मे क्रिएट अ प्रॉब्लम, मगर ऐसा चॉइस हमारे पास दिया ही नहीं है।
जब हमारे पास ऐसा चॉइस दिया ही नहीं है तो वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू डेफिनेटली से हाँ भाई ये सभी के सभी नहीं हो सकते, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है। और कोई भी कंपाउंड यहां पर ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, पहला पॉइंट। ओके, इसका मतलब चारों चॉइस हो सकते हैं हमारे पास। अगर ये चारों चॉइस हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जाते हैं भाई। इसके अंदर it is oxidized by hot KMnO4 to form benzoic acid। याद रखना स्टूडेंट्स, जितने भी अल्काइल बेंजीन्स होते हैं या अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल्स होते हैं, इन सबको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा, सारे के सारे बेंजोइक एसिड बनाएंगे। अब इसके बाद it reacts with sodium to give colorless gas, that is hydrogen gas। भाई ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, सभी के सभी देंगे क्या? what is called हाइड्रोजन गैस विथ सोडियम मेटल। अरे भाई तीन ऑब्जर्वेशंस सारे के सारे सबको बता रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये कहता है इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट, इट गिव्स नो प्रेसिपिटेट। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, कौन सा कंपाउंड दे सकता है? याद रखना स्टूडेंट्स, हैलोफॉर्म रिएक्शंस के लिए अगर मेरे पास अल्कोहल है तो ये अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि यहां पर एक ऐसा ग्रुप है। तो एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। क्या पॉइंट है? पहले 1 मिनट, पहला पॉइंट हियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CHOH G कैन बी अल्काइल ग्रुप और H atom, they will always give haloform reactions। अब इनमें से कौन सा है जो इस हैलोफॉर्म कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये है, और ये बता रहा है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे ये डिलीट कर देना चाहिए। अब मैं कितनी चॉइस में आ गया? 3 चॉइस में आ गया। अभी भी खतरनाक भाई, सारे रिएक्शन सबसे दिए जा रहे हैं। अब एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ये लास्ट पॉइंट है, इससे क्या हम आंसर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? अगर देखते हैं, चलो इसको मैं क्रोमियम के साथ ऑक्सीडाइज करता हूं। इसको अगर मैंने क्रोमियम के साथ ऑक्सीडाइज किया तो कंपाउंड क्या बनेगा स्टूडेंट्स? हियर बेंजीन है। ओके, 1 ऐसे करके डबल बॉन्ड O, और इसको C वाले को करते हैं, C वाले को करते हैं, C वाले को ऑक्सीडाइज किया किसके साथ? क्रोमियम के साथ। अब C के अंदर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? C के अंदर बनेगा ये, और हमारे पास CHO, बिकॉज यहां पर हमारे पास H एटम है। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको स्टूडेंट्स, दोबारा लिख देते हैं इसको। यह यहां पर H और CHO, ये कार्बन है, 3 कार्बन एटम्स। इज दैट क्लियर? अब ये अगर आप देखते हैं ध्यान से तो ये एक कायरल कार्बन एटम आ गया, तो क्या दे रहा है? ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स अ कायरल कंपाउंड। ये दे सकता है कायरल कंपाउंड। अब देखते हैं क्या ये दे सकता है कायरल कंपाउंड? ये अगर देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया बेंजीन 1 2 एंड 3। क्या इसके अंदर कोई कायरल कंपाउंड है? कायरल कंपाउंड नहीं है। इसका मतलब यह है इन सारे पॉइंट से हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है कि दैट द आंसर हैज टू बी C choice only। ओके, नाउ वी गो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इस क्वेश्चन के अंदर SN2 रिएक्शन, इट इज SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखो, SN2 रिएक्शन है तो इमीडिएटली हमारे माइंड के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? अगर SN2 रिएक्शन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इज द गवर्निंग फैक्टर। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस गवर्निंग फैक्टर है तो भाई यहां पर तो सारे के सारे कंपाउंड सेम ही है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, और ये भी प्रोपाइल है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे जोन्स हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है दैट हियर द आंसर इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन
the leavability. The answer is going to depend upon leavability. अगर मैं leavability देखता हूं तो leavability के मुताबिक आंसर आ जाता है यहां पर that weak bases are good leaving groups. वीक बेस के लिए क्या पॉइंट चाहिए हमारे को? वीक बेस मींस चार्ज डेंसिटी ऑफ x माइनस शुड बी लेस. अगर चार्ज डेंसिटी लेस होना चाहिए, हमारे पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? लीवेबिलिटी will be Br minus greater than Cl minus greater than F minus. That means charge density should be less, then it is a weak base and is a good leaving group. Therefore इसके अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 greater than 1 greater than 2. तो आंसर क्या जाना चाहिए? C choice over here. Okay, answer should be over here, C choice. I hope all of you could get this particular answer correctly. फाइन. नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर, लीवेबिलिटी के ऊपर. फंडा क्या करना चाहिए? फंडा क्या है हमारे पास? फंडा है वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स. वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स. अगर वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स हैं तो इसके लिए पॉइंट टू बी नोटेड. क्या पॉइंट है? ये देखिएगा कि इट इज गोइंग टू बी S डबल बॉन्ड O माइनस ग्रेटर देन लीवेबिलिटी. ओके, लीवेबिलिटी की बात कर रहा हूं. लीवेबिलिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन COO माइनस ग्रेटर देन फिनॉक्साइड एंड ग्रेटर देन OH माइनस. अब ध्यान से देखो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है? ये CF3COO माइनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसका मतलब SO3 माइनस कहां आया? SO3 माइनस वहां पे आया. तो इसको अगर मैं लीवेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? CF3SO3 माइनस ग्रेटर देन CF3COO माइनस ग्रेटर देन CH3COO माइनस ग्रेटर देन फिनॉक्साइड. ये लीवेबिलिटी ऑर्डर. सो कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा? आंसर होगा क्या हमारे पास? ए चॉइस स्टूडेंट्स. ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. लीवेबिलिटी हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. व्हिच वन विल गिव द व्हाट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन व्हिच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट. यानी कि इसके अंदर हमारे को ये देखना है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनाएगा. इसके कार्बोकेटाइंस बनाते हैं. अगर हम कार्बोकेटाइंस बनाते हैं तो पहले वाले का कार्बोकेटाइन ये बना, दूसरे वाले का कार्बोकेटाइन ये बना, तीसरे वाले का कार्बोकेटाइन ये बना. सॉरी, कार्बोकेटाइन बना ना, कार्बोकेटाइन इसको मिटाया मैंने, कार्बोकेटाइन लिख देता हूं स्टूडेंट्स. यहां पर कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज. ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज. इसके अंदर कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव. लिख लिया. अब देखिएगा यहां पर माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा. देयर इज माइनस आई इफेक्ट हियर. यहां पर भी माइनस आई इफेक्ट आ गया, मगर यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेट कर गया. कॉन्जुगेट करने की वजह से ये स्टेबलाइज होगा. अब यहां पर भी इसका माइनस आई. आप कहेंगे सर क्या यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता? कैसे होगा स्टूडेंट्स? रेजोनेंस के लिए हमारे पास एक कंडीशन है. यहां पर वो कंडीशन है, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन. जैसे CH2 पॉजिटिव है,
CH डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ ये स्टेबलाइज हो गया। दूसरा CH2 पॉजिटिव है और यहां पर मैंने रख दिया यहां पर Cl ग्रुप या F ग्रुप, Cl ग्रुप डाल दिया, हाँ ये स्टेबलाइज हो गया, लोन पेयर आ गया, ये स्टेबलाइज हो गया। इस कंडीशन के मुताबिक ये ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे लिए? सी चॉइस। सी चॉइस हमारे लिए ये आंसर है। Now let us see this question students. अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, the half cell reduction potential of hydrogen electrode at pH equal to 10 will be. इस क्वेश्चन को देखते हैं, it is a hydrogen electrode, so immediately हमारे दिमाग के अंदर वो फॉर्मूला आना चाहिए for reduction potential of hydrogen electrode with respect to pH. तो वो क्या हो जाएगा? E H plus 2H2 is equal to minus 0.0591 into pH. अब pH कितना दिया हुआ है? pH दिया हुआ है हमारे पास 10. pH अगर हमारे पास 10 दिया हुआ है, pH is 10 over here, इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? माइनस 0.591। माइनस 0.591 का मतलब कौन सा आंसर आ गया स्टूडेंट्स? आंसर इज डेफिनेटली बी चॉइस। बी चॉइस आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप ध्यान से देखते हैं, क्या दिया हुआ है? दैट द इक्विवेलेंट conductance of NH4Cl, NaOH and NaCl are given, and we are supposed to find out the equivalent conductance at infinite dilutions for NH4OH. NH4OH is a weak electrolyte. अब ये strong electrolyte, ये भी strong electrolyte और ये भी strong electrolyte। तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? कॉलराश लॉ यूज करेंगे। अगर हमने कॉलराश लॉ यूज किया तो लैम्डा इक्वलेंस NH4OH will be equal to lambda NH4Cl plus lambda NaOH minus lambda NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ये आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर को। वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 149.74। ये कितना आ जाएगा? 126 पॉइंट, सॉरी नॉट 126, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 248.1 और ये कितना है? 126.4। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। 149.74 देन 248.10, वैल्यू कितना आ गया? 4, ये 8, ये 7, 1, 9, 397.84 माइनस 126.4, तो कितना आ गया आंसर? 4, 7 minus 6 is equal to 1, 9 minus 2 is equal to 7, 3 minus 1 is equal to 2, 271.4। so कौन सा चॉइस सही चॉइस आ गया हमारे पास? आंसर इज बी चॉइस। आंसर बी चॉइस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जाते हैं। फंडा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जब भी हमारे पास फैराडेज लॉज आते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, हमेशा आप फॉर्मूला वो वाला जो आपने पढ़ा हुआ वो भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज। कोई और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी कर सकते हो। ये नहीं कह रहा कि दूसरा फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए, वो कर सकते हैं आप, जो स्ट्राइक करता है। मैंने आपको ये मेथड, नया मेथड बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितना होगा? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ फैराडेज कितना होगा? Q बाय 96500। ये किसके बराबर होगा? I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 बाय 2। 63.5 बाय 2 आ जाता है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई। x डिवाइडेड बाय 63.5 बाय 2,
यानी कि ये हो जाएगा क्या, 2x डिवाइडेड बाय 63.5 इज इक्वल टू क्यू। क्यू आई कितना है, 2.6। अब सवाल यह है कि टी कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना चाहिए इसको, इस कन्वर्जन को ध्यान से करना चाहिए। 6 मिनट्स हैं, 6 मिनट्स हैं तो कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 सेकंड्स, सॉरी 360 सेकंड्स हो गए। 360 प्लस अनदर 20, ये कितना हो जाएगा, 380 सेकंड्स। ये है 380 सेकंड्स, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और 96500 के साथ डिवाइड कर दिया। अगर आप ये चीज देखते हैं तो आंसर डेफिनेटली सॉल्व करिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। ये क्या है, 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 63.5 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 380 divided by 96500. Therefore, x is equal to 2.6 into 380 into 63.5 into 63.5। अगर आपने इसको 63.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर रख दिया 2 into 96500, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा, आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच, प्लीज चेक इट अप, प्लीज चेक इट अप स्टूडेंट्स। If you solve it, definitely the answer will come out to be equal to 0.325. आंसर आ जाएगा 0.325। Therefore, इसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करने में आपको गलती नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स। It will come out to be equal to 0.325। Their answer over here is this part. Done? So let us go to the next question. The next question now. ये ए है या सी है, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 38 तो हो गया, 39 का, 38 का तो आंसर सी हो गया, करेक्ट आ गया, कर दिया। अब now let us go to the next question students. If I go to the next question, look at this question clearly. Yes, this question, check it up, it is nothing but a galvanic cell, but a galvanic cell which is a concentration cell, and in this concentration cell it is going to be a electrolyte concentration cell, electrolyte concentration cell। अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, बिकॉज ये एनोड और कैथोड दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स हैं, तो ई नॉट सेल जो सा है वो 0 होगा और ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग ऑफ एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन रेस पर x अपॉन कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन रेस पर y होना चाहिए। अब इक्वेशन देखेगा, इक्वेशन क्या होता है, जिंक 2 plus gives rise to, let me write it little more properly such that you understand the whole thing। एनोडिक रिएक्शन क्या हुआ, जिंक gives rise to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एनोड कॉन्सेंट्रेशन। और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, ये एनोड का है, कैथोड का दिखेगा Zn2 प्लस जो सा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके Zn बनाएगा। अब अगर आपने इसको ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Zn2 प्लस ऑफ कैथोड गिव्स राइज टू Zn2 प्लस
ऑफ एनोड, यानी कि प्रोडक्ट में एनोड कॉन्सेंट्रेशन 10⁻x कर दिया, मगर यहां पर x = 1 आ गया, देयरफॉर आ गया इसके अंदर -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ एनोड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना आ गया -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ 0.1, यानी कि -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻1। अगर मैंने इसको 10⁻⁻1 कर दिया, सॉल्यूशन देखा तो आंसर डेफिनेटली हो जाएगा 0.0591/2। अगर 0.0591/2 है तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.0295। आंसर विल बी व्हाट, 0.0295, 0.0295, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर सी चॉइस होगा, आंसर सी चॉइस होगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये वाला ध्यान से देखेगा। एक सेल है, सेल का उन्होंने सेल रिएक्शन दे दिया। जब भी आप सेल रिएक्शन देखते हैं, सेल रिएक्शन देखने के बाद देखेगा कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड होगा, यह है हिंट मटेरियल। तो कौन सा एनोड कौन सा कैथोड, एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जोन सा है, ये पोर्शन जोन सा है, इसके अंदर क्या, ये कह सकते हैं हम, ओके, और ये पोर्शन जोन सा है, इसके अंदर क्या, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रेड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ और ये रेड्यूस हुआ। सो वी नो विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच इज गेटिंग रेड्यूस, वी हैव कम टू नो। अब एनोड कौन सा होगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड होगा, एनोड, और ये कैथोड। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स हियर, ई सेल और ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ओके, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं भाई स्टूडेंट्स। ई सेल दे दिया इसने, ई नॉट सेल दे दिया, ये भी दे दिया, और ये निकालना है हमने। तो हम अब इसको ऐसे लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब कौन सा कैथोड है, कैथोड इज दिस वन, ये है कैथोड, ये है कैथोड। और कैथोड का वैल्यू दिया है या नहीं दिया, नहीं दिया स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, माइनस। अब ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है, ई नॉट सेल दिया हुआ है इतना, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 1.89 इक्वल टू एक्स माइनस। अब एक्स माइनस आ गया तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये वैल्यू कितना दिया है, -0.28। ओके, -0.28 किसका, CO2 प्लस टू दिस वन, तो इसको लगा दिया हमने यहां पर माइनस ऑफ -0.28। क्लियर? अगर ये लगा दिया, गड़बड़ हो गया आंसर। हाँ, वन सही है, सही है, सही है, सही है, करेक्ट करेक्ट ही कर रहा हूं मैं। दोबारा करूं क्या इसको, है दोबारा करो। नहीं, सही कर रहा था। आप ना ऐसा कराइए जैसे बच्चे बैठे हैं, हाँ, उनसे क्या होगा कि रिकॉर्डिंग हो, उसमें आप लेक्चर नहीं बैठे हो। हाँ, मैं कुछ गड़बड़ कर, मैं कुछ, नहीं, हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसको बोल सकते हैं कि बेटा मिस्टेक हो गया है, वापस से इसको ऐसे कर, ताकि वो सीखना अच्छा लगे। अच्छा। अब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर दूं। हाँ, इसको वापस करके तो नेक्स्ट ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसा कैजुअल बच्चों से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, तो सीक्वेंस
ठीक है, राइट। नाउ लुक एट दिस न्यू क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगर आप इस न्यू क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इट इज क्लियर हियर दैट Ce4 प्लस CO gives rise to 2Ce3 plus CO2 प्लस। अब इक्वेशन दिया है क्या? सेल रिएक्शन दिया है। अगर सेल रिएक्शन दिया है तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सेल। अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सेल को, कैसे कंस्ट्रक्ट करें? एनोड होना चाहिए और कैथोड, और एनोड के लिए ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ। अगर ये है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो हो जाएगा एनोड, रिड्यूस जो हो रहा है वो कैथोड हो जाएगा। अब सेल क्या हो जाएगा? CO2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Ce3 प्लस Ce4 प्लस Ce, ठीक है, Ce ये है एनोड कैथोड। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए? अब रिएक्शन होना चाहिए हमारे लिए E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड कौन सा हो गया स्टूडेंट्स हियर? कैथोड कौन सा हो गया ओवर हियर? इट इज सीरियम। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये वाला हो गया हमारे पास 1.89 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। कैथोड कौन सा है? इट इज गोइंग टू बी सीरियम। ओके, सीरियम है तो सीरियम सेरिक वी कैन से। इसका इक्वल टू कैथोड है, कितना वैल्यू हो जाएगा इसका? ये नहीं दिया, x आ जाएगा माइनस एनोड का कितना है? माइनस 0.28 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या हो गया? 1.89 इज इक्वल टू x प्लस 0.28। अब इसको यहां पर लेके आते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने इसको इस तरफ लेके आए तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1.89 माइनस 0.28 कितना आ गया? वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 9 माइनस 1 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ये 1.61। देयरफॉर आंसर चॉइस इज A चॉइस। इज दैट क्लियर? आंसर चॉइस इज A चॉइस स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये फ्रीजिंग पॉइंट, the molar freezing point constant of water is equal to 1.86, यानी कि मोलार फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है। ओके, और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारे पास 342 ग्राम्स शुगर डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स। सीधा दे दिया, और भी आसान। अब हमारे को क्या यूज करना स्टूडेंट्स? क्या ये डिसोशिएट एसोसिएट करेगा? नहीं, डिसोशिएट एसोसिएट ना करने की वजह से I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I इज इक्वल टू 1। देयरफॉर I अगर 1 है तो हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट? KF इंटू M। M कितना है? अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। KF कितना है स्टूडेंट्स? 1.86 मल्टीप्लाइड है। मोलालिटी कितना हो गया? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स इसको। 1.86 मल्टीप्लाइड बाय वेट कितना है? 342। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 342। अमाउंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 एंड 1000 सीधा कैंसल। आंसर कितना होगा? 1.86। इसका मतलब डेल्टा TF है 1.86। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उससे कम करो माइनस 1.86। देयरफॉर आंसर ओवर हियर विल बी 1.86 माइनस 1.86। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड हेप्टेन
इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये फट आना चाहिए। ये कौन सा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये है पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर है और H बॉन्डिंग होगा, और ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर वैन डर वाल्स होगा, वैन डर वाल्स हो गया इसके अंदर। अगर इसके अंदर वैन डर वाल्स है और ये नॉन पोलर वैन डर वाल्स आ गया यहां पर, इसका मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी, देयर इज नो प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड हेप्टेनॉल। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन आ गया। आंसर इज इक्वल टू बी चॉइस, आंसर इज बी चॉइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आंसर आ गया ये वाला, फॉर एन बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B। ओके, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन XA एंड XB, XA एंड YA इन द वेपर फेज, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, XA एंड XB विच इज करेक्ट। ओके, आंसर, इस आंसर को देखिएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करिएगा आंसर, इसको सॉल्व करते हैं यहां पर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपरली तो क्या है, YA इज इक्वल टू P नॉट A XA अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। Therefore YA is equal to P नॉट A XA upon P solution, YB is equal to P नॉट B XB upon P solution। अगर ये है तो YA upon YB is equal to P नॉट A XA upon P नॉट B and XB आ गया। P नॉट A YA upon YB is equal to P नॉट A XA upon P नॉट B XB। Obviously now P नॉट A is greater than P नॉट B। Okay, therefore which is the right answer over here? अगर P नॉट A is greater than P नॉट B etc, if we substitute all these values, obviously it will be YA by YB will be what? YA upon YB will be greater than XA upon XB or not students? Will it be greater or will it not be greater? XA upon XB से greater होगा कि नहीं? Obviously P not YA upon YB will be greater than XA upon XB. Correct or wrong is the question here. Student 1 minute यार, 1 मिनट, ये गलती होगी मेरे से, एक क्वेश्चन। आंसर इसका सी चॉइस दिया हुआ है 43 है ना, 43 का। सी है ना आंसर? सी है, तीनों सी आएगा सर। हाँ, मैं तीनों सी है ना, मैंने करेक्ट ही किया था, मैं फिर अचानक डर गया, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ करके, मैं दोबारा कर रहा हूँ दोबारा। ये वाला मैंने कभी ऐसे किया नहीं ना पहले, तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है मेरे से आज। एनीवे, अच्छा बनेगा सर। हाँ एनीवे, नाउ स्टार्ट करूँ। Now let us go to 43rd question. इस 43rd question को अगर ध्यान से देखते हैं, it clearly says here P not A is greater than P not B. P not A greater than P not B. Okay. Which relationship between XA in the liquid phase and YA in the vapor phase is correct? भाई, P not A greater than P not B. Definitely YA will be greater than YB or not? YA will be greater than YB and P not A is also greater than P not B. अब अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स तो सॉल्यूशन के अंदर, तो YA अगर आप देखते हैं, YA is equal to P not A XA upon P solution and YB is equal to P not B XB upon P solution. Therefore YA upon YB is equal to what? P not A XA upon P not B XB. इसका मतलब YA upon YB also will be a higher value because P not A XA is greater than P not B XB. तो अब अगर वेपर फेज के अंदर ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा जाएगा स्टूडेंट्स? A ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये आ गया कि आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली C choice over here. Answer is C choice. So let us go to the next question. This one. इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? इक्वेशन जरा ध्यान से देखते हैं। इसके अंदर इस इक्वेशन को देखिएगा ध्यान से।
अगर एक्स बी 1 के बराबर है तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी बी। अगर एक्स बी 0 के बराबर है तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी ए। ये फंडा लगाना चाहिए। अगर आपने ये फंडा लगाया तो पी टोटल इज इक्वल टू 120 माइनस 75 इंटू एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1, therefore p total is equal to 120 minus 75। तो 120 minus 75 कितना हो गया 45, which is nothing but equal to pb। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहां पर p total is equal to 120 minus 75 xb। अब मैं क्या करता हूं, xb is equal to 0 कर दिया। तो अगर मैंने xb is equal to 0 कर दिया, then p total is equal to pa, which is nothing but equal to 120 minus 0, which is going to be equal to 120। इसका मतलब pa किसके बराबर है, it is going to be 120, and pb किस पे बराबर है, it is going to be equal to 45। and because xb is 1, it is p naught b, and because it is pure a, therefore it is p naught a, so p naught a, p naught b। so प्योर सैंपल्स के अंदर आंसर ओवर हियर आ जाता है आपका सी चॉइस ओवर हियर। ओके, सी चॉइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं 45th क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी। अब याद रखना इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ओके, इफ यू चेकअप हियर, इक्विमोलार सॉल्यूशन है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर ये I इज इक्वल टू 1 है तो अगर I इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, KF इंटू M। मोलालिटी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, so delta TF1 is equal to KF into M1 and delta TF2 is equal to KF into M2 because solvent same, therefore KF1 is equal to KF2, therefore मैं लिख देता हूं delta TF1 is equal to KF into M and delta TF2 is equal to KF into 2, sorry KF into what, M2, KF into M2 लिख दिया। एंड अब कह रहे हैं कि M1 इज इक्वल टू M2। अगर M1 इज इक्वल टू M2 है तो इसका मतलब डेल्टा TF1 इज इक्वल टू डेल्टा TF2 एंड ऑल्सो डेल्टा TB1 विल बी इक्वल टू डेल्टा TB2। तो इसका मतलब ये हुआ दे विल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड द सेम फ्रीजिंग पॉइंट। देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी चॉइस। Okay, so with this students we have finished off the first segment, that is MCQs with one answer. Now we go to the next part and that is section 2, and the section 2 we are going for the numerical part of it. And in the numerical part of it, very easy, first question here we have got how many of the following are less reactive than CH3I for SN2। इसका मतलब we have to take up what, steric hindrance। steric hindrance अगर ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव होगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देखना है, लेस रिएक्टिव। इसका मतलब ये है तो ये लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ये भी लेस रिएक्टिव। देखो कितने आ गए, 1 2 3 4, आंसर इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ गया इसके लिए, 4 आंसर। दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लेस रिएक्टिव इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Look at this particular question students. If you look at this particular question, he is asking the number of moles over here of what, methyl magnesium chloride। अब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करेगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल, रिएक्ट करके पहले क्या बनाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसके साथ पहले रिएक्ट करके ये एक सब्सटेंस बना देगा। ओके, क्या, MgCl प्लस मीथेन बना देगा और हमारे पास ये आ गया। अब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड
इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये भी चला जाएगा, अब बना देगा O MgCl MEO MgCl। ओके, इसका मतलब यहां पर हमारे पास आ जाएगा Me। अब क्या आ जाएगा, MEMgCl दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा और करने के बाद में क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, हियर O MgCl O MgCl O MgCl, ये कंपाउंड बना। अब इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। अब बताइए कितने MEMgCl के साथ रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, इट इज एक्चुअली 3 moles। हाउ 3 moles? फर्स्ट विद दिस वन, पहला वाला 1 will be reacting with this part। फर्स्ट पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद 2 इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 2 बार इसके साथ रिएक्ट करेंगे। सो टोटल मोल्स कितने, 3। Therefore answer over here will come out to be equal to 3 students, 3 moles। So answer for this one is 3। अब इसके अंदर the number of sp2 hybridized carbon atoms in phenol is going to be equal to 7। Answer is 7। Why? Because oxygen is not sp3, you will take it as sp2 only because it is in conjugation with the benzene system। Okay, now next this one, during the electrolysis of an aqueous solution of sodium sulfate, okay, 2.4 liters of oxygen is liberated, how much of hydrogen will be liberated? Simple, volume। Answer here, number of equivalents of O2 is equal to number of equivalents of hydrogen। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 1 equivalent of O2 is equal to 5.6 liters and 1 equivalent of hydrogen is equal to how much, 11.2 liters। Okay, therefore number of equivalents is equal to volume in liters divided by what, 11.2 for hydrogen, and number of equivalents of oxygen is equal to V in liters divided by 5.6 for oxygen। ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे यहां पर V for oxygen, ऑक्सीजन कितना है 2.4 डिवाइडेड बाय 5.6 is equal to, नेक्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, V डिवाइडेड बाय 11.2। तो ये 5.61 है, ये 5.62 आ गया, ये आ गया V in liters is equal to how much, 2.4 into 2 that is equal to 4.8। मगर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है मल्टीप्लाइड विद 10x फॉर्म के अंदर। अगर मैंने इसको 10x फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.8 into 10 कर दिया तो आंसर आ गया 48। आंसर ओवर हियर कम्स आउट टू बी 48 स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर, आंसर इज 48। This is 49th question over। We got the last question now students, and this is during the electrolysis of equivalent conductance is there। ठीक है, equivalent conductance दिया है एसिटिक एसिड का 50 for what, 0.01 molar, and the maximum value of equivalent conductance कितना दिया है, मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो गया इट इज नथिंग बट मोलार कंडक्टेंस एट व्हाट, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ये हो गया हमारा लैम्डा इंफिनिटी ई, और ये हो गया हमारा, ये वाला हो गया लैम्डा एम। Therefore, alpha is equal to degree of dissociation lambda m infinity lambda m divided by lambda m infinity, lambda m divided by lambda m infinity, या lambda e divided by lambda e infinity, मतलब lambda m infinity, lambda e infinity। See, we are
बच्चों याद रखना, वी आर हैबिचुअल टू सेइंग मोलार कंडक्टेंस, यहां पर इक्वल कंडक्टेंस दिया है, फर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, लैम्डा ई कितना दिया हुआ है 50, और ये कितना दिया हुआ 250, ये कितना हो जाएगा 1/5. 1/5 का मतलब 0.2 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है यहां पर, पूछ रहा है यहां पर परसेंटेज पूछ रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए, 0.2 को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 100 से, तो आ जाएगा 20. आंसर आ गया हमारे लिए 20 स्टूडेंट्स. ओके, विद दिस we have finished the complete discussion of this particular portion of the paper. Next students, let us see to it that whenever we are doing the questions etc., see to it that you read the questions carefully. Possibility is there that I must have done the whole discussion little fast. Why did we do fast discussions? The reason is that assuming that my students know these concepts, and if you have the idea that no sir इसको थोड़ा सा और स्लो स्पीड पे कर दो ताकि और डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन कर दो, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या सोचा था, हाँ कई सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स आते होंगे करके. अगर आप अपने फीडबैक को दे देते हैं कि नो सर इसके अंदर थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दो, इसके अंदर और भी कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दो, definitely we will do it because we want our students to come well. Okay, thanks a lot students.